Ignited Minds Tutorials recently uploaded an enlightening video on YouTube discussing the renowned poem Fire and Ice by Robert Frost. This poem, filled with deep meaning and profound symbolism, explores the destruction of the world by either fire or ice. In this exceptional tutorial, the meaning and summary of the poem are meticulously explained. Fire represents desire, passion, and the impulsive nature of human beings, while ice symbolizes hatred, coldness, and indifference. The poet contemplates which of these forces will ultimately lead to the world's demise. The video also discusses the use of poetic devices in the poem. Frost masterfully employs metaphors, alliteration, and paradox to enhance the impact of his words. Through metaphors, Frost compels readers to reflect upon the potential ruin caused by human emotions and actions. The utilization of alliteration and paradox adds a musical quality to the poem, making it even more captivating. Ignited Minds Tutorials has once again proven their commitment to providing excellent educational content. This video not only unravels the profound meaning of Frost's Fire and Ice, but also enables students to understand the effective use of poetic devices by elucidating the themes and techniques employed by Robert Frost. The tutorial empowers students to analyze poetry and appreciate its beauty more deeply. This knowledge explanation article serves as a valuable resource for Class 10 CBSE students, fostering comprehension and appreciation for poetry while promoting critical thinking and analytical skills. Okay, people, we are actually going to cover Robert Frost's poem आपका है Dust, Fire and Ice, ठीक है? Okay, now in Fire and Ice आपने देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आपके सिलेबस में एक और पोएम है विच इज़ बेसिकली डस्ट ऑफ स्नो. वो भी एक बहुत ही छोटा सा पोएम है जहाँ पे अ पर्सन हु इज़ वेरी डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड इन लाइफ एंड सीज नो वे आउट इज पासिंग अंडर अ ट्री विच इज़ बेसिकली एक ट्री है, उसके ऊपर एक क्रो है and there is some snow out there and it basically shooks the tree and the snow falls on the person's head and automatically he is cheered up for some reasons, whatever melancholy or whatever reasons of depression or dejections were there, they all get removed. ठीक है, एक सिंपल सा इंसिडेंट है, एक छोटा सा पोएम है और ऐसा ही लगभग एक छोटा सा पोएम यहाँ पे भी है. ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का हर पोएम जो लिखी जाती है वो किसी बैकग्राउंड में लिखी जाती है, कंटेम्प्रेरी होती है. ठीक है, व्हाट वी एग्जैक्टली मीन बाय कंटेम्प्रेरी इज पीपल, कंटेम्प्रेरी मतलब उस दौरान जो भी कुछ चल रहा होगा आजू बाजू में, उसका एक खास असर राइटर पे होता है. वेदर राइटर इज बेसिकली अ स्क्रिप्ट राइटर और स्टोरी राइटर, अ प्ले राइट और मे बी अ पोएट. ठीक है, और ये पोएम जब लिखी गई थी ऑलमोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था और बहुत मैसिव रूप से डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को सबने ही देखा था. ठीक है, सो फ्रॉस्ट's फायर एंड आइस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द हार्पर्स मैगजीन, अ लिटरेरी एंड कल्चरल मैगजीन. ये बहुत ही फेमस मैगजीन हुआ करता था उस टाइम पे. ठीक है, हार्पर्स मैगजीन. इट वाज, मैंने दिया था साथ में ही स्टेपलर दिया था मैंने. अच्छा ये लीजिए नहीं देख ली, लेके जाइए ना भाई. टाइम हो गया ना उनका. हाँ हो गया हाँ. तो फ्रॉस्ट's फायर एंड आइस वाज फर्स्ट पब्लिश इन द हार्पर्स मैगजीन विच वाज बेसिकली अ लिटरेरी एंड कल्चरल मैगजीन. तो आप लोगों ने कोई भी कभी मैगजीन पढ़ा है अभी तक? नहीं. ओके, हमारे टाइम पे बहुत सारे मैगजीन्स रिलीज़ होते थे और अलग अलग मैगजीन्स अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते थे. ठीक है, मैंने यहाँ पे देखे रखा है देखो. ठीक है, अलग अलग चीज़ें. तो आपके लिटरेरी मैगजीन्स होते थे, कल्चरल मैगजीन्स होते थे. ठीक है, तो उनका ये ओके इन 1920 इट वाज बेसिकली पब्लिश्ड. ठीक है, देखो 1920 में पब्लिश हुआ मतलब कभी जस्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज एंडेड, दैट इज 1919 में एंड हुआ और 1920 में ये
पब्लिश हुआ था। उसको बंद करना, कौन बुला रहा है तेरे को श्रीराम? यही लोग जो बाहर गए कि बाहर से है? और ओके, ठीक है। द पॉपुलैरिटी ऑफ हार्पर्स एंश्योर्ड दैट फ्रॉस्ट's पोएम वाज वाइडली रेड फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। अभी भाई साहब हार्पर्स मैगजीन एक ऐसा मैगजीन था जहाँ पे बहुत मतलब गिने चुने लोगों की जो वर्क थी वो छापी जाती थी, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई ये पोएम। ही लेटर इंक्लूडेड द पोएम in his collection of poetry titled New Hampshire. New Hampshire basically is the name of a state in US, ठीक है। New Hampshire भाई साहब एक स्टेट है यूएस में, ठीक है। इट इज़ बेसिकली अ स्टेट इन यूएस। जैसे आपका भाई साहब उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है, ऐसे आपके स्टेट्स इंडिया में, वैसे न्यू हैम्पशायर भी एक स्टेट है यूएस में, ठीक है। पब्लिश्ड इन 1923 विच वन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज। ये पुलित्जर प्राइज बेसिकली राइटर्स को मिलता है उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड होता है, वैसे वहाँ पे पुलित्जर प्राइज होता है। Some literary critics believe that Robert Frost's Fire and Ice is influenced by the epic poem Inferno. Actually Inferno एक पोएम था जो डांटे ने लिखा था बहुत पहले, ठीक है, और ये उससे इंस्पायर हुई है क्योंकि बहुत सारे पैरेलल कनेक्शंस थे, ठीक है। बाय द 14th century इटालियन पोएट डांटे, ठीक है। इन्फर्नो डिस्क्राइब्स द पोएट टेकिंग अ जर्नी थ्रू हेल एंड लेटर इन अदर वर्क्स बाय डांटे थ्रू परगेटरी एंड पैराडाइज, ठीक है। तो हेल और हेवन, तो इसमें एक जर्नी है, ठीक है, जो उन्होंने डिस्क्राइब की है। एंड ऑब्जर्विंग द फेट्स ऑफ सिनर्स, तो जो सिनर्स हैं उनका फेट को ऑब्जर्व करता है, हो गया है। ये पास कर देना, ठीक है। एंड ऑब्जर्विंग द फेट्स ऑफ सिनर्स सम हैव पॉइंटेड आउट रिजेम्बलेंसेस बिटवीन डांटेज वर्क एंड फ्रॉस्ट, ठीक है। तो डांटे जो एक इटालियन पोएट थे उस टाइम पे, और फ्रॉस्ट में, ठीक है, बहुत सारे सिमिलैरिटीज है। फ्रॉस्ट के इस फायर एंड आइस में, फ्रॉस्ट के इस फायर एंड आइस में, और डांटे का जो वर्क था बेसिकली इन्फर्नो, ठीक है, इसमें काफ़ी सारा सिमिलैरिटीज़ हैं। इन इन्फर्नो पोएम में डांटे ने आपका मतलब जर्नी को एक्सप्लोर किया है फ्रॉम हेवन एंड हेल, और फ्रॉस्ट का भी लगभग वही है, ठीक है, वही विचारधाराएं हैं। तो सम से दैट इट हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर, ठीक है, ओके। इट इज़ हार्ड टू नो एग्जैक्टली व्हाट इंस्पायर्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू राइट फायर एंड आइस, मतलब क्या उनको इंस्पिरेशन मिला था कि उन्होंने ये पोएम लिखा है। इट इज़ हार्ड टू नो दैट। इट इज़ नॉट नोन इफ फ्रॉस्ट एवर डायरेक्टली सेड व्हाई ही रोट द पोएम, ठीक है, दो मैनी रीडर्स एंड क्रिटिक्स हैव गेस्ड एज इट्स मीनिंग। तो बहुत सारे रीडर्स और क्रिटिक्स ने इसका मीनिंग गेस किया हुआ है, ठीक है, ओके। देयर आर स्ट्रॉन्ग क्लूज दैट डांटेज इन्फर्नो एंड इन्फ्लुएंस एज सजेस्टेड अबव। तो आपका बहुत सारा, जिन लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली लिटरेचर को पढ़ा हुआ है, तो इटली के जो राइटर थे डांटे, और उन्होंने जो इन्फर्नो पोएम लिखा था उससे काफ़ी सारे पैरेलल मिलते जुलते चीज़ें हैं जो फायर एंड आइस में हैं, ठीक है। Yet the apocalyptic themes present in the fire and ice. What do you mean by apocalyptic themes? मतलब destruction, ठीक है, death and destruction. Apocalyptic themes present in fire and ice may have had a more immediate source than Dante. तो मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि डांटे जो है उसके बहुत पहले प्रकाशित हुआ था, before, you know, many years before Robert Frost had actually published his poem, many years before it was there. तो ये जो एपोकलिप्टिक जो है मतलब डेथ और डिस्ट्रक्शन का जो पैरेलल वो है, ऐसा लोग मान रहे हैं कि इट वाज ड्यू टू द रीसेंट वर्ल्ड वॉर 1 विच हैड एंडेड इन 1919, ठीक है, और 1914 से 1919 तक भाई साहब ये वर्ल्ड वॉर चला जिसमें अमेरिका भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, और उसका जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुआ था उसी को पैरेलल में रखते हुए इन्होंने कंटेम्प्रेरी इन्फ्लुएंस से फायर एंड आइस को लिखा है, ठीक है। दैट्स व्हाट पीपल ड्रॉ। तो there is a set of people who believe that Fire and Ice has been adapted from Dante's work of Inferno, and there is a set of people who believe that Fire and Ice has been actually inspired by the contemporary events of the termination of First World War, ठीक है, okay. Frost published the poem in 1920, just a couple of years after the First World War. Okay, so there is a set of people who are believing that Dante's influence basically inspired Robert Frost to write the poem, and there is a set of people who believe that it is from the contemporary termination of the First World War, that is 1920. Just a couple of years after the First World War had ended, Frost was certainly aware of the scale of death and destruction. ये हम बोल रहे हैं apocalyptic, ठीक है, ये थीम जो है इसका apocalyptic है,
द थीम ऑफ द पोएम इज एपोकलिप्टिक, मतलब मैसिव डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, किसी एक या दो इंसान का डेथ या डिस्ट्रक्शन नहीं, मैसिव डिस्ट्रक्शन, एपोकलिप्टिक, ठीक है. सो इट हैज गॉट एन एपोकलिप्टिक थीम एंड दिस थीम इज बेसिकली ड्रॉन फ्रॉम द रीसेंट वॉर विच हैज एंडेड ऑन अ वर्ल्ड लेवल एंड इट हैड गॉट मैसिव आपका क्या डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, डांस ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑल ओवर. Frost was certainly aware of the scale of death and destruction that came along with this war between many nations. Obviously, European continents में primarily ये war fought हुआ था, which people had taken to calling the war to end all wars. सबने बोला कि भाई साहब सारे युद्धों का ये एक समापन होगा, the war to end all wars. यूरोप में जब ये वॉर फॉट हो रहा था, वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इट वॉज नोन एज द वॉर टू एंड ऑल वॉर, सारे वॉर्स को एंड करने वाला वॉर. नेवर बिफोर हैड द वर्ल्ड सीन सो मेनी मिलियंस डाई एज अ रिजल्ट टू वॉर. इसके पहले भाई साहब किसी ने भी इतनी दहशत में और इतने बड़े पैमाने पे डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को नहीं देखा था. सो हो सकता है दैट कुड बी द एलिमेंट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू राइट दिस एपोकलिप्टिक थीम oriented poem, ठीक है. Okay, moreover the end of the war also coincided with the emergence of the death of the deadly Spanish flu. उस टाइम पे भाई साहब कोविड की तरह ये फैला था, इनफैक्ट कोविड से भी ज़्यादा लोगों की जाने गई थी इस पे, ठीक है. 1918 अगेन अनदर एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, दिस इज नेचुरल डिस्ट्रक्शन, ठीक है. स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था उस टाइम पे, epidemic in 1918 which eventually infected perhaps a third of the world's population. उस टाइम पे जो पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन था उसका 1/3 हिस्सा उससे अफेक्टेड हो गया था, ठीक है, अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है, एंड कॉज मिलियंस अपॉन मिलियंस मोर डेथ्स, ठीक है. सो वन was basically the end of a destructive war which was basically a result of mankind's influence and the other one was nature's influence, ठीक है. Needless to say apocalyptic themes were likely on Frost's mind even before they emerged in Fire and Ice, ठीक है. तो ये जो apocalyptic theme है, जो central theme है, ठीक है, इस भाई साहब पोएट का, इस पोएम का apocalyptic theme जो है वो central theme है and this theme is coming from, ठीक है, the WW1 end, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का एंड, ठीक है, और क्या भाई साहब आपका स्पेनिश फ्लू उस टाइम पे भाई साहब फैला हुआ था, इसका तांडव फैला हुआ था, ठीक है, जैसे आपने कोरोना का देखा वैसा है, जिसमें 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वाज बेसिकली इंपैक्टेड बाय दिस डिजीज, मेनी मोर मिलियंस डाइड, ठीक है. सो दीज वेर टू मैसिव डिस्ट्रक्शंस दैट वेर सीन ड्यूरिंग द, तो ये मैसिव डिस्ट्रक्शंस देखे गए थे. एक तो भाई साहब मैन मेड डिस्ट्रक्शन है, दूसरा नेचुरल डिस्ट्रक्शन है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने देखा था और लगभग यही चीज़ उनके कविता में उतर गई, ठीक है. दूसरा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा जाता है वो है भाई साहब डांटेस इन्फर्नो के साथ, जो बहुत साल पहले लिखा गया था, ठीक है, वेर इन ही हैज बेसिकली एक्सप्रेस द जर्नी फ्रॉम हेवन एंड हेल, ठीक है. ओके, सो दीज वेर द फायर एंड आइस इज ओनली 9 लाइन्स लॉन्ग. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम आपने पहले भी देखे हैं, बहुत छोटे छोटे पोएम होते हैं. इसके पहले जो डस्ट ऑफ स्नो आपने देखा है वो भी एक बहुत ही छोटा सा पोएम था. दिस पोएम ऑल्सो हैपेंस टू बी जस्ट 9 लाइन्स लॉन्ग एंड दैट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द राइटर. विदाउट राइटिंग अ वेरी लेंथी एक्सट्रैक्ट और अ पोएम ही इज एबल टू स्किलफुली कन्वे हिज मैसेज, ठीक है. बट इट मैनेजेस टू पैक अ लॉट इन अ कॉम्पैक्ट स्पेस. एक छोटे से स्पेस में बहुत सारा कुछ इन्होंने पैकअप कर दिया है, ठीक है. The poet introduces two contrasting points of view, ठीक है, held by different groups of people. तो दो अलग अलग views हैं held by two different groups of people. The poem does not identify who the people are specifically, but only notes. तो एक group of people supports fire and एक group of people supports ice, ठीक है. Both are destructive elements in their own ways, ठीक है. So he is not specifying who supports what, ठीक है. Poem does not identify who the people are specifically but only notes that some believe the world will, तो ये दुनिया का अंत कैसे होगा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे उन्होंने ये कविता लिखी है, ठीक है. हाउ इज दिस वर्ल्ड गोइंग टू एंड? सम आर सेइंग दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड द अदर्स आर पॉइंटिंग आउट दैट इट विल एंड इन आइस. सब कुछ बर्फ हो जाएगा, ठीक है, और एक ग्रुप ऑफ लोग सोचे कि दिस विल बेसिकली एंड इन फायर, ठीक है. ओके, while another group believes that it will end in ice. The speaker then considers each of these points of view. तो अलग अलग points of view हैं and decides that though they side with the group that believes the world will end in fire, they also realize that ice is an equally destructive force that could just as easily lead to the end of the world, ठीक है.
सो अगर भाई साहब फायर डिस्ट्रक्टिव कर सकता है तो आइस भी इक्वली ही एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है विच कैन कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो ऑल थ्रू आउट दिस पोएम वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर एज टू हाउ द पोएट इज थिंकिंग दैट एनी ऑफ दीज टू एलिमेंट्स इज गोइंग टू एंड द अर्थ, पुट एन एंड टू द अर्थ। ठीक है, ओके। Like many poems, Fire and Ice contains deeper meanings symbolized by the images it discusses। तो पोएम भाई साहब आपका एक तो इसका थीम एपोकलिप्टिक है और इसका एक फिगर ऑफ स्पीच है सिंबॉलिक। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द पोएटिक स्पीकर डज नॉट लिटरली मीन दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस। तो सिंबॉलिक पोएम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी साइंटिफिक तरीके से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं या डिडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब दुनिया का अंत आग से होगा या भाई साहब बर्फ से। ठीक है, ये उनका पॉइंट नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आग और बर्फ को उन्होंने एलिमेंट्स लिए हुए हैं और इन एलिमेंट्स का डिस्ट्रक्टिव नेचर को डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हमारा एक डिस्ट्रक्टिव नेचर पूरे सोसाइटी में है। ठीक है, ओके। So it's symbolic. Instead, these elemental forces represent the idea of destruction in the world. So major theme क्या है भाई साहब? Destruction, जो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे अपने टाइम पे देखा in terms of World War as well as in terms of the Spanish flu that was basically killing people. ठीक है, okay. People differ in their opinions about what will cause the destruction ऑफ द वर्ल्ड और इवन इन इट्स अल्टीमेट एंड। तो लोगों की भाई साहब अलग अलग विचारधाराएं हैं कि कैसे ये जगत का अंत होगा। ठीक है, दीज डिसएग्रीमेंट्स आर क्लियरली रेफरेंस बाय पॉइंटिंग टू द फायर ग्रुप एंड द आइस ग्रुप। तो उनके पोएम में ये अटेम्प्ट किया गया है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। ठीक है, okay, so these disagreements are clearly referenced by pointing to the fire group and the ice group as well as to the speaker's own opinions। ठीक है, तो ये भाई साहब डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। These disagreements are clearly referenced by pointing to the fire group and the ice group as well as to the speaker's own opinions। स्पीकर के भाई साहब खुद के ओपिनियन है। ठीक है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने फायर और आइस ग्रुप में कोई डिसिमिलैरिटी क्रिएट करने की कोशिश की है, मतलब इन्होंने एक वक्तव्य को रखा है कि किस तरह से मैसिव दोनों ही डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, ओके। द पोएम सजेस्ट दैट वन थिंग इज फॉर श्योर, नो मैटर विच साइड वन टेक्स, डिस्ट्रक्शन इज इनएविटेबल। ठीक है भाई साहब, आग से हो या आपके बर्फ से हो, डिस्ट्रक्शन इज इनएविटेबल, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। दिस इज बाउंड टू हैपन। इनएविटेबल मतलब जो होगा ही होगा। ठीक है, डिस्ट्रक्शन आना ही आना है। इन द एंड द स्पीकर टेल्स अस ईदर डिजायर और हेट is equally likely to end in destruction। हेट को इन्होंने भाई साहब आइस के साथ कंपेयर किया है, डिजायर को इन्होंने फायर के साथ कंपेयर किया है। ठीक है, सो जस्ट एज डिजायर फॉर गेटिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू लीड इन डिस्ट्रक्शन, सिमिलरली हेट में इंसान भाई साहब कोल्ड हो जाता है। ठीक है, कोल्ड हो जाता है मतलब ठंडी लगती है उसको, ऐसा नहीं। ही बिकम्स कोल्ड टू अदर्स इमोशंस, ही बिकम्स कोल्ड टू अदर्स फीलिंग्स, ही बिकम्स कोल्ड और रादर इनसेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग्स। ठीक है, दूसरे लोगों के भाई साहब उसके इमोशंस उसको कनेक्ट नहीं होते, ही बिकम्स रादर कोल्ड। ठीक है, सो हेट इज बेसिकली को रिलेटेड टू आइस and desire is correlated to fire. Just as more and more of desire is finally going to inevitably lead to destruction, similarly more and more of hatred is going to inevitably lead to the destruction of this world. Okay, that's his motive. Desire represented by fire. So here the element of desire in us is represented by fire, can lead to destruction through unchecked accumulation of things. देखो हमारा accumulation और animals का accumulation बहुत different है। ठीक है, एनिमल्स डू नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर। जैसे अगर किसी शेर का पेट भरा होगा और उसके सामने से भाई साहब कोई डियर का झुंड जा रहा होगा या भैंसों का झुंड जा रहा होगा, इट्स नॉट गोइंग टू अटैक, इट्स गोइंग टू जस्ट लाई देयर until and unless it is hungry, it is not going to hunt. ठीक है, that is how they are. ठीक है, वो जो भी काम करते हैं वो सामयिक होती है, मतलब उस समय के लिए होती है। ठीक है, तो इफ दे आर अटैकिंग देन दे आर हंग्री। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है भाई साहब। ठीक है, अगर भाई साहब मेरा पेट भरा हुआ है और तुम मेरे लिए भाई साहब कोई लाए कुछ भाई साहब मीट, कुछ गुलाब जामुन वगैरह लाए, मैं उसको फटाक से लेकर भाई साहब फ्रिज में डाल दूंगा, कल खाऊंगा इसको, है ना। सो वी आर कॉन्स्टेंटली, बिकॉज वी कॉन्स्टेंटली हैव फ्यूचर इन आवर माइंड, सो ह्यूमन बीइंग्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट, अभी नहीं तो आगे चल के। ठीक है, जाने नहीं देंगे। ठीक
ठीक है, इसको हम जाने नहीं देंगे अपने हाथ से, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ थिंग्स, और थ्रू द ड्राइव टू गेन समथिंग एट ऑल कॉस्ट, ठीक है, किसी भी चीज को भाई साहब किसी भी कीमत पे पानी है, ठीक है। Yet hate represented by ice can also lead to destruction by tearing apart bonds between people. Hate मतलब आपको cold बना देता है, ये cold और insensitive towards others feelings, ठीक है, that can also lead to tearing apart bonds. So this is basically the poem, ठीक है। Some say the world will end in fire, ठीक है, some say in ice, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। डिजायर देखो, ये डिजायर का भाई साहब फायर से पैरेलटी है, ठीक है, मतलब फायर को उन्होंने एज एन एलिमेंट को रिलेट किया है डिजायर के इमोशन के साथ, ठीक है। सो डिजायर को फायर के साथ को रिलेट किया है। मोर एंड मोर ऑफ डिजायर, मोर एंड मोर द नीड टू वांट। और ह्यूमन बींग्स क्या है, जनरली वी आर अ बंडल ऑफ wants that are ever unfulfilled. Our wants are never going to be fulfilled, ठीक है। कॉमर्स में भी जब आप पढ़ते हैं तो आपका पहला यही रहता है, ठीक है, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, पूरी जो हमारी सेटअप है, सोसाइटियल सेटअप है, ये सिर्फ इसी पे चल रहा है, क्योंकि हमारे वांट्स जो है वो अनलिमिटेड हैं, दे आर अनलिमिटेड। फुलफिलमेंट ऑफ वन वांट गिव्स राइज टू अनदर, ये चलता ही रहेगा, दिस इज गोइंग टू गेट क्रिएटेड। कुछ वांट्स हम फुलफिल करते हैं एक्चुअली हमारे नेसेसिटीज़ के लिए, और कुछ हम मतलब जैसे समझो डायमंड, ठीक है, डायमंड कैसा ही वांट हो गया। देखो, एक कंपनी आई डिवेयर्स, और उन्होंने क्या देखा कि भाई साहब ये एक पत्थर है, लेकिन इस पत्थर को अगर हम फेमस बना दें और लोगों में क्रेज ला दें तो भाई साहब धनाधन। और देखो भाई साहब वो क्या है, पत्थर है जिसका कोई काम नहीं है, जिसका कोई काम नहीं है, लेकिन इट इज गेटिंग सोल्ड इन करोड्स, ठीक है, उसका इतना अहमियत बना दिया, तो हमने उसको क्रिएट कर दिया है, ठीक है। सो ये हमारी तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। डिज़ायर बेसिकली तो हमारा, जैसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में मैन इज़, तो इकोनॉमिक्स में ना एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसमें एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ना, बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशंस दिया है, ठीक है, किसी ने भाई साहब इनकम रिलेटेड डेफिनेशन दिया हुआ है, तो इकोनॉमिक्स में उन्होंने भाई साहब एक डेफिनेशन दिया है, स्केयरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। स्केयरसिटी ओरिएंटेड मतलब जितनी भी चीज़ें आपकी बेची और ख़रीदी जाती हैं उनका मार्केट में स्केयरसिटी है, ठीक है, तभी वो चीज़ें बेची और ख़रीदी जाएंगी। आपके लिए एयर कितना एसेंशियल है, वेरी मच एसेंशियल, एक पल ना रह पाएँ आप उसके बिना, ठीक है। कितना पैसा भरते हैं एयर लेने के लिए, नहीं, कुछ नहीं, इसीलिए एयर की आपके जीवन में कोई अहमियत नहीं है इकोनॉमिक्स के ट्रेंड में, ठीक है। इकोनॉमिक्स बोलता है भाई साहब, इकोनॉमिक्स ये बोल रहा है कि एयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट स्टे विदाउट एयर इवन फॉर अ सेकेंड, ठीक है, लेकिन उसका आप कोई कीमत अदा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इकोनॉमिकली उसका कोई कीमत नहीं है, ठीक है। और डायमंड जिसको आप बिना, अगर किसी के जीवन में कोई डायमंड नहीं आया तो क्या वो मर जाएगा, नहीं, जी सकता है ना भाई साहब, लेकिन डायमंड का कीमत देखो भाई साहब, ठीक है। सो इस तरह की उल्टा पुल्टा समाज है हमारा, ठीक है, हमारी सोच अलग है, ओके। तो ये आपका स्केयरसिटी ओरिएंटेड है। तो डिज़ायर देखिए क्या होता है, एक डिज़ायर दूसरे डिज़ायर को जन्म देता है, एक कुछ हमने फुलफिल कर लिया, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और ऐसे ही हम चलते रहते हैं, ठीक है। आई होल्ड विद दीज दोज हु फेवर फायर, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा साइड लिया उन लोगों का जिन लोगों ने भाई साहब फायर को फेवर किया, बिकॉज डिजायर है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ठीक है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, ठीक है, अगर इसको एक दोबारा जिंदा होना है तो आई थिंक आई नो मोर ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ice is also great. तो ice is equally capable of destruction of the entire world as fire is capable, ठीक है, and would suffice. तो fire and ice भाई साहब यहाँ पे क्या है, these represent two of the classical elements, that is earth, water, air and fire. ये आपके क्लासिकल एलिमेंट्स हैं, हम हिंदू माइथोलॉजी में इसको पंचभूत बोलते हैं, ठीक है। आई डोंट नो हाउ मनी ऑफ यू नो इट, ठीक है। आपका अर्थ, एयर, ये सारी चीज़ों का 5 एलिमेंट्स होता है, दीज आर 5 एलिमेंट्स विच आर बॉडी इज मेड अप ऑफ, और जब हम मर जाते हैं तो हमारा बॉडी इन्हीं में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, ओके। सो अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर. फायर इज अ फोर्स दैट कंज्यूम्स एंड ट्रांसफॉर्म्स थिंग्स, लिटरली चेंजिंग देम एज दे आर बर्न्ड, ठीक है, तो पूरा चेंज हो जाता है. फायर एज अ लिटरेरी सिंबल हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू लव एंड डिजायर, ठीक है. तो फायर को उन्होंने भाई साहब किससे काउंट किया है, लव एंड डिजायर. लव मतलब ये स्पिरिचुअल लव की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, जो जगत में जो लव है उसकी बात करें. लव एंड डिजायर,
ठीक है. थिंक ऑफ कॉमन फिगरेटिव फ्रेजेस यू माइट हैव हर्ड. एंड हार्ट्स बर्न विद, जैसे समझ लो भाई साहब, माई हार्ट बर्न्स विद पैशन. एंड वी स्पीक ऑफ पास्ट लव्स एज ओल्ड फ्लेम्स, है ना. अगर मैं किसी पास्ट अपने एक्स की बात कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की, तो हम बोलते हैं ना ओल्ड फ्लेम्स. ठीक है. तो फायर को जनरली लव के साथ और डिजायर के साथ जोड़ा गया है. ठीक है. ओके. ओल्ड फ्लेम्स एंड सो ऑन. There are also plenty of stories of love becoming obsessive and all consuming. Obsessive मतलब भाई साहब जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें पागल ही हो जाते हैं. ठीक है. अगर दूसरा छोड़कर चला गया तो आत्महत्या कर लो भाई साहब, नस काट लो. ठीक है. So thus it is no surprise that Frost's poem directly connects फायर टू डिजायर. तो इन्होंने इसीलिए फायर को डिजायर के साथ कनेक्ट किया है, बिकॉज बहुत सालों से ही ऐसा चला आ रहा है. ओल्ड फ्लेम्स, जब हम बोले फ्लेम्स मतलब क्या होता है, फायर, इसको हम ओल्ड फ्लेम्स जब फ्रेज यूज करते हैं तो इसका मतलब हम किसी एक्स के साथ को रिलेट कर रहे हैं. ठीक है. माई हार्ट इज बर्निंग फॉर यू, ऐसा. ठीक है. तो दीज आर बेसिकली, फायर को जब हम यूज कर रहे हैं वी आर बेसिकली यूजिंग इट इन टर्म्स ऑफ लव एंड डिजायर. ठीक है. तो इस एलिमेंट को हमने यूज किया हुआ यहाँ पे. आइस इज ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट ऑफ वाटर. भाई साहब के में आपका ट्रांसफॉर्म स्टेट ऑफ वाटर है ये. आइस इज अ ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट ऑफ वाटर. व्हाइल लिक्विड वाटर इज फ्री फ्लोइंग एंड फ्लूइड, आइस इज रिजिड एंड कोल्ड. आइस भाई साहब आपका रिजिड होता है और कोल्ड होता है. वंस अगेन द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ आइस इज क्लियर व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्सन बीइंग कोल्ड हार्टेड. एक इंसान भाई साहब कोल्ड हार्टेड है और हैविंग आइस इन देयर वीन्स. हम बोलते हैं ना भाई साहब तुम्हारे वीन्स में, तुम्हारे नसों में आइस है क्या, जम गए हो क्या. ठीक है. रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो. ठीक है. मैं इतने देर से चिल्ला के कुछ बोल रहा हूँ या प्यार से कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, जम गए हो क्या, ऐसा बोलते हैं ना हम. ठीक है. तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कोल्ड हार्टेड. कोल्ड हार्टेड मतलब यू आर एब्सोल्युटली इनडिफरेंट टू मी. ठीक है. ठीक है, कह सकते. ठीक है. सो फ्रॉस्ट's पोएम सीम्स इंटरेस्टेड इन द सिमिलैरिटीज. ठीक है. आपके भाई साहब सिमिलैरिटीज है बिटवीन आइस एंड हेट. ठीक है. तो यहाँ पे फ्रॉस्ट का पोएम जो है, फ्रॉस्ट's पोएम सीम्स इंटरेस्टेड इन द सिमिलैरिटीज बिटवीन आइस एंड हेट. व्हाइल आइस इज फ्रीजिंग थिंग्स इन प्लेस, हेट कैन कॉज अ पर्सन टू बिकम रिजिड इन इमोशनल एंड पर्सनल टर्म्स. तो रिजिड मतलब ठोस हो गया है अभी वो, उसको कोई असर नहीं हो रहा है. ठीक है. ही हैज बेसिकली बिकम अनटच्ड नाउ. ठीक है. सो ही हैज बिकम कोल्ड टू अदर पीपल्स इमोशंस एंड सेंसिटिवनेस. ठीक है. ओके. अभी हम भाई साहब पोएटिक डिवाइसेस की बातें करेंगे. जस्ट वन मोमेंट पीपल. ओके. तो अभी देखते हैं इसका भाई साहब राइमिंग स्कीम क्या है. व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय राइमिंग स्कीम. तो आपका देखो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसको अगर हमने ए बोला, सम से इन आइस, इसको बी बोला, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो ये मिल रहा है भाई साहब ए. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो आपका क्या हो गया देखो ए बी ए है ना भाई साहब. ठीक है. क्लियर है. ओके. आर वी क्लियर ऑन दिस वन. तो ये आपका राइमिंग स्कीम है. पहले स्टैंजा के लिए राइमिंग स्कीम है आपका ए बी ए. दूसरे स्टैंजा को जब हम पढ़ेंगे तो हमारा भाई साहब राइमिंग स्कीम क्या दिखेगा, बी सी बी जी पी. ठीक है. ओके. तो अभी हम इसको देख लेते हैं भाई साहब. पोएटिक डिवाइसेस. असोनेंस मतलब क्या होता है भाई साहब, किसी वॉवल का साउंड जब एक सेंटेंस में रिपीट होता है उसको हम बोलते हैं असोनेंस. ठीक है. अ वॉवल साउंड, नॉट अ वॉवल इन पर्टिकुलर. ठीक है. तो वॉवल का साउंड जब रिपीट होता है तो प्रोमिनेंट साउंड ऑफ अ सिंगल वॉवल थ्रू आउट द सेंटेंस. ठीक है. जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ ओ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. ठीक है. तो प्रोमिनेंटली ओ आपका साउंड हो रहा है यहाँ पे. सो इट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ असोनेंस. ठीक है. तो ये वाले आपके सेंटेंस में देखो असोनेंस भर भर के यूज हुआ है. ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है और ओ यहाँ पे भी है. तो भर भर के आपका असोनेंस यूज हुआ है. ठीक है. तो ऑलिटरेशन, इट इज द रेपिटेशन ऑफ अ लेटर
एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड वर्ड्स। ऑलिटरेशन जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे हम लेटर की बात करें विच इज बेसिकली अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, ज्यादा करके ये कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। तो जैसे आपका भाई साहब यहाँ पे देखो लेटर एफ इन द फेवर फायर, ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे देखो फेवर फायर, दोनों भी आपके भाई साहब ये एफ और एफ से चालू हो रहे हैं, ठीक है, एफ और एफ से चालू हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज नोन। ऑलिटरेशन और रेपिटेशन दोनों अलग होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? ऑलिटरेशन और हाँ, पूरा वर्ड या एक फ्रेज रिपीट होता है, ठीक है, एक वर्ड या एक फ्रेज या एक सेंटेंस ही रिपीट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेपिटेशन, ठीक है। और आपका ऑलिटरेशन क्या होता है? ऑलिटरेशन इज जस्ट अ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सक्सेसिवली एफ और एफ भाई साहब रिपीट हुआ, तो दिस इज ऑलिटरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल लेटर एफ इन फेवर फायर, लेटर डब्ल्यू इन वर्ल्ड विल, ठीक है। आपका देखो भाई साहब यहाँ पे वर्ल्ड किधर गया भाई साहब, ठीक है, वर्ल्ड विल कंसेक्यूटिवली आपका डब्ल्यू रिपीट हुआ है, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑलिटरेशन, ठीक है। इमेजरी, इट इज यूज्ड टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स दैट इन्वॉल्व देयर सेंसेस। Throughout the stanza, we imagine things because of the strong visual elements. यहाँ पे बहुत strong visual elements को use किया गया है, that is eyes, ठीक है, ठीक है, and fire. The speaker is also used words like some say, ठीक है, some say, tasted, desire, which again uses our senses. तो क्या आप desire को taste कर सकते हैं? वाकई में नहीं, ठीक है। आप खाने को टेस्ट कर सकते हैं, किसी फ्लूइड को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डिजायर को कहां से टेस्ट कर सकते हैं? बट दिस इज इमेजरी, ठीक है, ओके। एनाफोरा, इट इज अ रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस। तो एनाफोरा भाई साहब आपका यूज हुआ यहाँ पे रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड, ठीक है। तो आपका देखो ये सम से ये बेसिकली आपका एनाफोरा है। Some say the world will end in fire, some say in ice, तो ये आपका एनाफोरा यूज हुआ है। रेपिटेशन ऑफ 2 वर्ड्स एट द स्टार्ट और एट द एंड ऑफ 2 कंसेक्यूटिव लाइंस। एक के बाद एक लाइन में अगर आपने सेम वर्ड से शुरुआत की है या सेम वर्ड से एंड किया तो उसको हम एनाफोरा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? हम ओके ओके ओके। अभी आते हैं भाई साहब इसके, देखो एग्जाम्पल सम से इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स 1 and 2। पर्सोनिफिकेशन, जब आप किसी अबायोटिक चीज को बायोटिक रेफरेंस में डील करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे अगर मैं बोलूं बादल गरज रहे हैं, ठीक है, तो बादल क्या मतलब, एक इंसान गरजता है, बादल या शेर गरजता है, बादल कैसे गरजेंगे, ठीक है, तो वो तो इन अबायोटिक चीजें हैं, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है। इट मीन्स टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू inanimate objects. In this poem, the poet portrays that fire is capable of destruction. Thus, the poet is personifying fire by giving it power to destroy anything and everything. तो भाई साहब फायर सब कुछ डिस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। फायर यहाँ पे एक्चुअली पोएट का मतलब फायर से नहीं है, पोएट का मतलब डिजायर से है। सो इट कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है, ओके। इंजैबमेंट क्या होता है? जब एक ही लाइन को आप मतलब 2-3 स्टैंजास में पूरे करते हैं। मतलब कैसा है, एक लाइन है, एक लाइन एक सेंटेंस में आना चाहिए था, लेकिन उसका थोड़ा बहुत हिस्सा दूसरे लाइन में डाल दिया और उसका थोड़ा बहुत हिस्सा तीसरे लाइन में डाल दिया, तो उसको हम बोलते हैं इंजैबमेंट। दिस इज नोन एज इंजैबमेंट, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ क्लॉज दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट द लाइन ब्रेक और कीप्स ऑन मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे यहाँ पे From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire, ठीक है। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? हम ठीक है। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो आपका भाई साहब ये एक लाइन होना चाहिए था, लेकिन ये 2 लाइन में कन्वर्ट किया गया है। So this kind of poetic device is known as enjambment. इस तरीके के poetic device को हम क्या बोलेंगे? Enjambment. Now, what about antithesis? The poet has used 2 words opposite in meaning in the stanza. तो fire and ice, ठीक है। Contrary words को हम क्या बोलते हैं? Antithesis. The poet has used 2 words opposite in meaning in the stanza, that is fire and ice. Symbolism क्या हो जाएगा भाई साहब? What is symbolism? The word fire has been used as a symbol of desire. किसको represent कर रहा है ये? फायर जो है डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आयुष उस स्विच को बंद कर देना, हाँ थैंक यू, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंबल ऑफ डिजायर। द फ्रेज एंड ऑफ द वर्ल्ड इज हियर टू। तो सिंबॉलिज्म क्या हो रहा है भाई साहब, ठीक है। तो आपको वर्ड फायर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है? अ सिंबल ऑफ डिजायर। द फ्रेज एंड ऑफ द वर्ड इज हियर अ सिंबल फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। The poet mentions that fire is enough for the world to end. That simply means that desire is enough for the self-destruction of a human.
तो एक ह्यूमन के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए भाई साहब डिज़ायर काफ़ी है. जस्ट एज फायर इज़ एनफ फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, सिमिलरली डिज़ायर इज़ एनफ फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमंस. मेटाफर, द पोएट कंपेयर्स फायर विथ डिज़ायर. तो मेटाफर मतलब कंपैरिजन होता है, ठीक है. यहाँ पे फायर के साथ किसका कंपैरिजन किया गया है? डिज़ायर की तरह, हमारी आकांक्षाएं, ठीक है. ओके, स्टैंजा 2. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको 2 बार पेरिश करना रहता, ठीक है. आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ठीक है. ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर आपको दूसरा चॉइस मिलता है, समझो अगर डिजायर से खत्म नहीं हुआ कोई, तो किससे खत्म हो जाएगा? कोल्ड फीलिंग से, हेट से खत्म हो जाएगा, ठीक है. इफ अ पर्सन विल नॉट एंड विद डिजायर, ही विल एंड विद हेट. दीज आर द 2 एक्सट्रीम्स ऑफ द एंड, ठीक है. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, ठीक है. अगर समझ लो डिजायर से ये वर्ल्ड खत्म नहीं होता है, लेट्स से, लेकिन दूसरा भी आपका एक जरिया है जिससे ये वर्ल्ड खत्म हो सकता है, और वो है हेट, ठीक है. एक दूसरे के प्रति हेट. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और आइस इज रिप्रेजेंटिंग वॉट हेयर? हेट, ठीक है. आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, मतलब इससे भी आपका वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है. ओके, इमेजरी यहाँ पे क्या यूज हुई है? It is used to make readers perceive things that involves their senses. Throughout the stanza, we imagine things because of the strong visual elements. ठीक है, strong elements क्या क्या है भाई साहब? आपका एग्जाम्पल, to say that for destruction, ice is also great. तो रीडर्स को भाई साहब विजुअलाइज कराया जा रहा है कि आइस के बारे में सोचो. अगर सब कुछ एक आइस के अंदर आ गया, सब मर जाएंगे, है ना. पूरा हमारा घर आइस हो गया तो वी विल बी इनसाइड ऑल डेड. तो ये एक इमेजरी है, ठीक है. एक विजुअलाइजेशन से आपको इमेजिन कराया जा रहा है कि इफ द एंटायर वर्ल्ड टर्न्स आउट टू बी आइस, वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है. To say that the destruction ice is also great, here the poet has used the word say, which again involves our sense of speaking. जैसे हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि बस मिसाल के तौर पे ये ले लो, ठीक है. ओके, पर्सोनिफिकेशन, इट मीन्स टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. तो जो आपके अबायोटिक चीज़ें हैं उनको ह्यूमन क्वालिटीज देना, ये होता है पर्सोनिफिकेशन. इन दिस पोएम द पोएट पोर्ट्रेज दैट आइस इज केपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन. आइस क्या है? अबायोटिक चीज़ है. डिस्ट्रक्शन कौन कर सकता है? जो पावरफुल हो और जिसमें कोई इमोशन हो डिस्ट्रक्शन करने का, ठीक है. आप किसी का नुकसान करना चाहेंगे तो ही तो नुकसान करेंगे ना. आपके अंदर भाई साहब वो आक्रोश होना चाहिए, तभी तो आप डिस्ट्रक्शन करेंगे, है ना. लेकिन यहाँ पे आइस को बोला जा रहा है ये भी डिस्ट्रक्शन कर सकता है. आइस का डिस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है. वो जम गया तो जम गया, पिघल गया तो पिघल गया, ठीक है. तो इट इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, बट इट हैज बीन गिवन द क्वालिटी और केपेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन. सो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन. दिस इज अ काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन. समझम. Thus the poet is personifying ice by giving it power to destroy anything and everything. तो पोएट भाई साहब आइस को पर्सोनिफाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि ये एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. ओके, सिंबॉलिज्म, द वर्ड आइस हैज बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड. यहाँ पे हेट्रेड के सिंबल से इसको डिनोट किया गया. तो फायर हैज बीन यूज, सिंबॉलिज्म क्या है? फायर की डिजायर के साथ, और आइस की सिंबॉलिज्म किसके साथ है? हेट्रेड के साथ, ठीक है. ओके, मेटाफर, द पोएट कंपेयर्स आइस विथ हेटेड. तो आइस को किसके साथ भाई साहब कंपेयर किया गया है? हेटेड के साथ कंपेयर किया गया, ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे समझ लो अगर आपका बी होता तो ये हो गया भाई साहब सी, ये हो गया भाई साहब आपका बी, ठीक है. ग्रेट 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 मतलब ये हो गया सी, एंड सफाइस तो ये हो गया आपका सी, तो ये हो गया आपका बी सी बी सी सी, ये हो गया आपका भाई साहब सफाइस आई, सॉरी ये बी होगा ना, लास्ट वाला बी होगा ना, सॉरी, ठीक है. क्लियर है? आर वी क्लियर? दिस विल बी द राइमिंग स्कीम. ओके ओके ओके, सो दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर दिस पोएम. एनी क्वेश्चंस आर यू वाला हैव अ पीपल? नो क्वेश्चंस आर? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. टाइम तो है अभी. क्या बोल रहे हैं?